Hello and welcome back students. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Masters in Computer Science first year semester 2 Web Technologies. Today we are going to learn radio buttons. We were discussing forms and the different elements used in the forms. In the past video we have discussed the text field, text area and the checkbox. And while we were discussing the checkbox, we have seen that checkbox is an element where you can do multiple selection at a time. Radio button is a control where as soon as you select one element, the other element becomes deselected. Even if you have more than one element, two element, all will become deselected as soon as you select the first element. These type of controls are normally used when you want your user to choose any one option out of the several options available. See children, what happened when you are designing a form is a way to take user information. It is an option to take data from the user, but we did not ask the user to manually sit and write all the details, but we are providing different controls, a GUI through which user is entering the details. Now it is your responsibility. Suppose you are designing a date field, you are designing a text field where you are asking your user to enter her date of birth. Now when the user will enter the date of birth, he may have different ways of writing her date of birth, but your system, while you are processing the data on your end, what will you do with the data user has entered? आप उसको जाके process करोगे. तो when you are processing the data, कितना प्रॉब्लम होगा. सबका डेटा, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग फॉर्मेट में लिखी होगी. किसी ने फुल फॉर्म में 29 दिसंबर सो एंड सो लिखा होगा, किसी ने 29/12 कुछ लिखा होगा. तो देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एंटरिंग द डेटा. तो ये अलग अलग स्टाइल से डेटा आने से हम उसे प्रोसेस नहीं कर पाते. अच्छा, अदर वे राउंड, आपके पास एक डेट एंड टाइम कंट्रोल होता है और आपने भले इसे खुद डिजाइन करते वक्त यूज ना भी किया हो, बट आपने कभी ना कभी कोई फॉर्म एंटर किया होगा. स्पेशली बहुत ही कॉमन है, डेफिनेटली हम सबके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स है और वहां पे भी साइन अप करना होता है. तो साइन अप करते वक्त आपको कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करने होते हैं. एट दैट टाइम व्हेन यू आर एंटरिंग योर DOB, तो वो आपको एक ड्रॉप डाउन कैलेंडर सॉर्ट ऑफ देता है जिसमें से आप अपनी DOB सिलेक्ट करते हो. तो ये कंट्रोल्स अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कंट्रोल्स बनाए गए हैं. तो सिमिलरली इफ़ यू आर आस्किंग योर यूज़र कि आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं हर यूज़र ने एक ही कोर्स किया हो. मोर देन वन कोर्सेज भी तो कर सकता है कोई यूज़र. तो वहाँ पे आप रेडियो बटन डालोगे नहीं, क्योंकि रेडियो बटन डालोगे तो एक यूज़र एक ही कोर्स सिलेक्ट कर पाएगा. अगर आप उससे ये पूछ रहे हो कि आपका जेंडर क्या है, तो आप चेकबॉक्स डालोगे नहीं, क्योंकि वो 2-3 जेंडर में एक साथ नहीं हो सकता. तो वहाँ आप रेडियो बटन यूज करोगे और जहाँ आपको चेकबॉक्स यूज करना है वहीं पे आप चेकबॉक्स यूज करोगे. Checkboxes are good if you want the user to be able to select multiple items. They are good only when you want your user to select multiple items from a number of choices. But if you want to let the user select only one item from a number of choices, you should use radio button instead, because they only allow the user to make one selection at a time. क्योंकि रेडियो बटन क्या बोलता है कि आप एक टाइम पे एक ही सिलेक्शन कर सकते हो. तो here is an example. .html that, like the preceding example, gives same example that we have seen in our previous video where we ask the user कि do you like fries or not. तो वहाँ पे हमने चेकबॉक्स यूज किया था और हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि दो ऑप्शन थे यूजर के पास, डू यू वांट fries or not. And then after asking this question, we have given check boxes with options yes and no. What if the user says yes I want and tick also no? तो दिस इज समथिंग एब्सर्ड. वो येस भी बोल रहा है, नो भी बोल रहा है, नॉट पॉसिबल. तो वहाँ हमने ऑल्दो यूज ऑफ चेकबॉक्स स्टडी किया, बट वैसे सिनेरियोज में चेकबॉक्सेस नहीं, रेडियो बटन्स यूज होते हैं. सो नाउ फाइनली द सेम एग्जांपल विद रेडियो बटन. ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस टाइम एंड अगेन. HTML हेड, ये HTML का एक स्ट्रक्चर होता है. आई डोंट नो यू पीपल हैव स्टडीड HTML और नॉट, बट HTML का एक प्रॉपर कंस्ट्रक्ट होता है. HTML, then head, then title. Title tag is always inside the head tag and then begins the body tag. तो टाइटल में लिखा हुआ है enter data with radio buttons और हेडिंग दी गई है स्क्रीन पे
H1 हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है, 6 हेडिंग्स होती है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. तो यहाँ पे H1 यूज की गई है, दैट इज द हाईएस्ट हेडिंग. एंटरिंग डेटा विथ रेडियो बटन्स. फॉर्म का मेथड मेंशन किया गया है पोस्ट मेथड. देयर आर 2 मेथड्स, गेट एंड पोस्ट. एक्शन है कि जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो रेडियो बटन डॉट php शुड बी कॉल्ड. द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन कम्स, डू यू वांट फ्राइज विद दैट. नाउ आप कौन सा कंट्रोल बना रहे हो, ये भी एक इनपुट कंट्रोल है इसलिए वहां इनपुट लिखा है. कंट्रोल का नेम आपने रेडियो लिखा है, टाइप उसका रेडियो लिखा है और वैल्यू उसकी येस लिखी है. तो जो रेडियो बटन डिजाइन होगी वो उसके कैप्शन में इस तरीके से येस लिखा होगा और नेक्स्ट रेडियो बटन के कैप्शन में नो लिखा होगा. अंडरस्टूड. तो 2 रेडियो बटन्स बनेगी यहाँ पे और दोनों का कैप्शन येस और नो होगा. देन ब्रेक ब्रेक, फाइनली एक थोड़े डिस्टेंस पे 2 ब्रेक है, थोड़े डिस्टेंस पे सबमिट बटन विद वैल्यू. वैल्यू इज द कैप्शन ऑन दैट कंट्रोल. जो भी उस कंट्रोल के ऊपर लिखा होगा उसे वैल्यू कहा जाता है. फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज एंड फाइनली द HTML टैग क्लोज. सो दीज आर द डिटेल्स आपके HTML की. और फाइनली सबमिट पे क्लिक करने से एक्शन क्या हो रहा है, रेडियो बटन डॉट php इज कॉल्ड. सो लेट्स सी द कोडिंग फॉर द रेडियो बटन डॉट php. So in this code there is again HTML, head, title, reading data from radio button, that is your title, head close, body start, head. In heading tag you have written reading data from radio button, heading tag close, you selected. Now you are going to display the PHP code. So if s set request radio, so this editing is not required. The name of the control, both the controls will be radio only. Yes, this radio button control is always have a same name and they are also called as a group control. Okay, so the name of the control will be same everywhere. So whatever name you want to give, like you have written the book has radios button, you can write it as radio 1, but make sure the name should be same everywhere. So the PHP code is, if is set request radio 1 echo request radios or radio 1, whatever is the name. So in group it will check the data coming from this control. If any of the radios are set, it will display whatever is set, that value, else it will write no radio button was selected. It's a group control. Okay, you need not give different name for these controls. See here also it's written radios. Don't look at this overwriting part. So it's radios and here also you can write radios. So this is, if is set request radios, you will display that value, else you will say that no button was selected. Okay, break tag, body tag close and HTML tag close. Okay, so now let's look at the output. This is the output, reading data from radio buttons. You will be having the answer as you selected as. This is the output of the PHP code. The HTML code has output as entering data from radio button. Do you want fries? 2 options will be there. If you select S, then the answer is this. So this will be the output for the HTML code. ऐसा फॉर्म आ जाएगा. क्वेश्चन रहेगा, 2 रेडियो बटन्स रहेंगे, सेंड बटन रहेगी. नाउ आपने ये सिलेक्ट किया, आपने सेंड पे क्लिक किया. जैसे ही आपने सेंड पे क्लिक किया ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे लिख कर आएगा यू सिलेक्टेड यस. ओके, सो दिस इज द कोड फॉर रेडियो बटन. नाउ हैंडलिंग लिस्ट बॉक्सेस. अब हम बात करते हैं कि लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का कैसे यूज़ होता है. लिस्ट बॉक्स कंट्रोल्स तब यूज़ होते हैं जब एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है और उस लिस्ट में से यूज़र अपना ऑप्शन सिलेक्ट करता है. लिस्ट बॉक्सेस आर ऑल्सो कॉमन HTML कंट्रोल एंड दे टेक अ स्पेशल हैंडलिंग. इफ यू वांटेड टू लेट द यूजर सिलेक्ट द फेवरेट ऑफ आइसक्रीम, लिस्ट बॉक्स डॉट HTML. चेक बॉक्स में आप कितने ऑप्शन डाल सकते हो? 6, 7, 8. उसके बाद चेक बॉक्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगते हैं. बट इफ़ यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, एग्जाम्पल देती हूँ. सी चिल्ड्रन, जब आप ये बनाते हो अपना अकाउंट या कुछ भी फॉर्म भरते हो किसी चीज़ के लिए, तो यू हैव टू एंटर योर स्टेट एंड सिटी एंड योर कंट्री. वहाँ पे वो चेक बॉक्स बना के डिफरेंट ऑप्शंस नहीं देते. और पहली बात तो वहाँ चेक बॉक्सेस काम भी नहीं करेंगे. यू कैन नॉट रिसाइड इन 2 कंट्रीज एट वन टाइम.
तो रेडियो बटन से भी इतने ऑप्शंस नहीं दिए जा सकते। जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उन ऑप्शंस को एक लिस्ट में डाल के आपको वो लिस्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा दिखता है। पहले वो सिलेक्ट योर सिटी ऐसा लिखा होता है, आप वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो बटन होती है, जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो डिफरेंट बहुत लॉन्ग लिस्ट आती है और उसमें से आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कंट्रोल कब यूज़ होगा? जब बहुत ज़्यादा लंबे ऑप्शन है, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑप्शन है, तो रेडियो बटन या चेक बॉक्स से ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते हम, और हम लिस्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो एंटरिंग डेटा विद लिस्ट बॉक्स इज योर टाइटल एंड ऑल्सो योर हेडिंग। सिलेक्ट योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स, देयर आर मेनी फ्लेवर्स, तो उन्होंने लिस्ट बना दी। यहाँ पे पोस्ट मेथड है एक्शन लिस्ट बॉक्स डॉट php, सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू आइसक्रीम मल्टीपल। ऑप्शन में है वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, हेरिंग, सिलेक्ट टैग क्लोज। इसको आप सिलेक्ट से यूज़ करोगे, ना कि इनपुट से। जो अभी तक कंट्रोल्स थे उनके आगे आप इनपुट यूज़ कर रहे थे, अभी लिस्ट बॉक्स के आगे आपको सिलेक्ट लिखना है। सिलेक्ट उस कंट्रोल का कुछ नेम दे दीजिए जो कोडिंग में आप यूज़ करोगे, और मल्टीपल, ठीक है। ऑप्शन में अब एक एक लिस्ट आइटम को लिस्ट करने के लिए ऑप्शन का यूज़ होता है, ठीक है। टू लिस्ट ईच एंड एवरी लिस्ट एलिमेंट, हमेशा ऑप्शन टैग्स के अंदर एक एक एलिमेंट को लिस्ट करिए। जब आपका पूरा लिस्ट बॉक्स बन जाए तो सिलेक्ट टैग क्लोज करिए। यहाँ पे भी सबमिट बटन है विथ वैल्यू सेंड, अंडरस्टूड। नाउ what we are going to call listbox.php. So look at the code for listbox.php. HTML head title, you know by now what is title, head close, body start, heading 1 also you know. Your ice cream flavors कहाँ पे है? PHP code. For each request ice cream as flavor, echo flavor. रिक्वेस्ट करो आइसक्रीम, आइसक्रीम यानी लिस्ट बॉक्स से रिक्वेस्ट करके लाओ। क्या डेटा था? कौन से वेरिएबल में? फ्लेवर वेरिएबल में। फिर से सुनो, रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट इट्स अ कीवर्ड, इट्स यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम फॉर्म, ठीक है। किसका रिक्वेस्ट करना है डेटा इस बार? आइसक्रीम का। आइसक्रीम किसका नाम है? आइसक्रीम नाम है हमारे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का। तो रिक्वेस्ट करेगा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल से एज जो भी उसमें से डेटा सिलेक्टेड होगा उस डेटा को फ्लेवर में पहले स्टोर करेगा और फिर उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। लेट्स सी द आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो एंटरिंग डेटा विथ लिस्ट बॉक्स, इस तरीके से लिस्ट बनी रहेगी। ज़्यादा लंबी लिस्ट हो तो ऊपर नीचे एरोज होते हैं स्क्रॉल करने के लिए। सेंड बटन थी, जो भी आपने सिलेक्ट किया वो सिलेक्टेड था। रीडिंग डेटा फ्रॉम, इन्होंने 3 आइटम्स को सिलेक्ट किया है, तो रीडिंग डेटा फ्रॉम लिस्ट बॉक्स, योर आइसक्रीम फ्लेवर वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। अंडरस्टूड? आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सेंड बटन, दिस इज द आउटपुट यू गेट ऑन योर screen. So this is it. In the next video we will come up with other controls. Till then, keep learning. Thank you so much.